Members of the press, thank you for joining us today. My name is Megha Ghosh. I'm the co-curator and show director of the upcoming International Temples Convention and Expo. And I've been here in the media and entertainment industry for almost 19 years, and it brings me great joy and a lot of honor to welcome you to a convention where we are creating an experience that are taking individuals back to their cultural roots. With this convention, we are aiming to bring all places of worship together on a much larger platform to strengthen the temple management system, to strengthen that ecosystem, and create an enriching experience for pilgrims and all the stakeholders that are involved. Today's press conference marks the beginning of an incredible journey, and it is my privilege to introduce you to the two esteemed dignitaries who have made ITCX possible, Shri Prasad Lad and Mr. Girish Kulkarni. Shri Prasad Lad is a prominent figure and name in Indian politics and a successful businessman. With a notable career, including roles such as the chairman of Mahadar, trustee of Sri Siddhivinayak Temple, he currently serves as an MLC of Maharashtra for the second term. He is also the chairman of the International Temples Convention and Expo 2023. Apart from his political career, Shri Prasad Lad is actively engaged in various social initiatives. He is the president of the Shramik Utkarsh Sabha and chairman of several educational trusts and societies that focus on imparting quality education to underprivileged students. A successful businessman, he founded the Crystal Group, which has provided employment to over 90,000 individuals across companies in various sectors. Thank you for being here, sir. Mr. Girish Kulkarni, the founder of the International Temples Convention and Expo and of Temple Connect, has had a remarkable entrepreneurial journey, which he started when he was 17. He started with Invents, a successful event management and media communication venture. And with over 24 years of experience, he is someone who's today a renowned speaker and mentor in media communication and brand strategy. Girish is very passionate about temple tourism. He has visited 4,118 temples across 57 locations as of today. And he is someone who wants to strengthen and promote the temple economy. He wants to change the devotee experience at temples and do all of this while preserving the temple significance and rituals. With that, I'd like to hand it over to you, Girish, and take forward the proceedings. So good afternoon, everyone. I hope I'm audible. Firstly, thank you for making it here. The convention is an initiative which is coming together to emphasize on certain areas which are extremely important. Temple Convention altogether is a meetup of people where administration, operations and management is the key of this entire convention. There are people who've been running the temple ecosystem extremely successfully for all these years together. But what is extremely important is as the times change, as the new age technologies are changing, as well as the need of the hour changes, there is a need for people to come together, discuss the areas of their interests, improvisation, at the same time complement each other by joining hands and putting things together. A lot of people have got into the aspect of discussing topics related to policies, temple management, aspects related to better convenience for the temple trustees who have been doing the greater job of managing things for the common man and joining hands together for cooperative initiatives for the pilgrims who are joining in there. बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये आप क्यों कर रहे हो या ये करने के पीछे आपकी भावना क्या है। तो हम बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी समय से एक सवाल उठता है कि इस काम को किसी को तो करना चाहिए। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि किसी को नाम का जो व्यक्ति है शायद वो मैं हूँ, और हमारे माध्यम से इस जागतिक मंदिर न्यास सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को ये जोड़ने की भावना कर रहे हैं। उसी के साथ में इस मंदिर न्यास सम्मेलन में मंथन भी होगा विषयों का और संगम भी होगा भावनाओं का, और
जागतिक स्वरूप में कोई 32 देशों से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो इन सारे लोगों को वहाँ पे अलग अलग विषय तज्ञों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझने भी आएंगी, और उसी के साथ में मंदिरों के जो विषय हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, या जो साउथ इंडिया टेम्पल्स के कोई इश्यूज हैं, नॉर्थ में कोई इश्यूज हैं, उन्हें वो डिस्कस करना है। अच्छा, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से और अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे अच्छे पैमाने में लोगों तक जागतिक स्वरूप में ले जाया जाए। मैं मेघा जी से विनती करता हूँ कि आप वीडियो प्ले करें, और उसी के साथ में प्रसाद लाल जी को विनती करता हूँ कि इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज के इस टेम्पल कन्वेंशन के प्रेस मीट के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे के उद्देश्य और करने का कारण, ये दोनों चीज़ें आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक ऐसा माध्यम है जो हम करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो लोगों तक बताने के आँख कान आप लोग हो। इसलिए आप लोग सभी क्या है, जैसे गिरीश ने कहा कि मंदिर टेम्पल कन्वेंशन क्यों, मंदिर टेम्पल कन्वेंशन वाराणसी में ही क्यों, और मंदिर टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का राज क्या है। शायद आपके लोगों के मन में भी वो क्वेश्चन होगा, लेकिन ये 3-4 चीज़ों को मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्टता से आपके सामने लेकर जाना चाहता हूँ। ये मंदिर टेम्पल कन्वेंशन 22, 23 और 24 जुलाई को वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी क्यों, तो वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर इतिहासों में ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी नगरी का जो उगम हुआ, इस दुनिया में पहली ऐसी नगरी बनी जो वाराणसी थी, जहाँ पर महादेव जी का उगम है, जहाँ पर गंगा माँ का उगम है, जहाँ पर महाकाल का दर्शन है, और एक पवित्र नगरी के नाम से इस पूरी दुनिया में अगर पवित्र नगरी कौन सी है तो वाराणसी को जाना जाता है। और सोमवार से शुरू हुआ, या पिछले सोमवार से हिंदी कैलेंडर से शुरू हुए अधिक श्रावण मास का भी एक कारण इस वाराणसी नगरी में कार्यक्रम करने का है। इस मंदिर सम्मेलन में जो भी मंदिर टेम्पल के लोग आएंगे, उन्हें वहाँ पर वाराणसी के महाकाल के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे, गंगा की आरती होगी, और श्रावण मास में एक अलग अनुभव भी उन्हें वहाँ पर मिलने वाला है। और आप सभी लोग वहाँ पर इनवाइट भी हैं। ये टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का कारण ये है कि 22, 23 और 24 को 3 दिन के इस कन्वेंशन में पूरे दुनिया के 25 से भी ज़्यादा देशों से, जैसे गिरीश जी ने कहा कि 35 देश वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 25 से भी ज़्यादा देशों के मंदिर के न्यास के लोग, जैसे कोई चेयरमैन या सीईओ होगा, या चेयरमैन सेक्रेटरी होगा, या सीईओ या पुजारी या मंदिर का ट्रस्टी होगा, ऐसे हर टेम्पल से 2 लोग इस पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, जिसमें पूरी अगर हम आपको बताएंगे तो लगभग 488 इंटरनेशनल टेम्पल लोकेशन के टेम्पल यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और हिंदुस्तान के लगभग 865 टेम्पल इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। 1250-1300 से भी अधिक लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑलरेडी किया हुआ है, और फिजिकली वहाँ पर हम लोग 716 टेम्पल को इनवाइट किए हैं। ऐसे नहीं कि 1200 को कर नहीं सकते थे, लेकिन पूरी वाराणसी की व्यवस्था देखते हुए इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से, टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था, रुद्र कन्वेंशन में बैठने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक की सारी व्यवस्था इस टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से की गई है। और इसमें बैठने की क्षमता लगभग 1500 जन की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है। इसके लिए 716 टेम्पल को डायरेक्ट इनवाइट किया गया है, और लगभग 600 टेम्पल्स इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए
22 तारीख को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे और 10 दिन के 10 सेमिनार में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे कि आप सभी के मन में भी होगा और कई लोगों के मन में है कि टेम्पल कन्वेंशन क्यों, तो इसमें भक्ति का भाव तो पक्का है, श्रद्धा का भाव तो पक्का है, लेकिन उसके अलावा भी मंदिरों के कई विषय होते हैं जिस विषयों को हमें लोगों तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि टेम्पल सेफ्टी की बात आई तो फिजिकल सिक्योरिटी की बात आती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की बात आती है, आईटी सिक्योरिटी की, कैमरा की, सीसीटीवी की, बैरियर्स की, सभी की बात आती है। तो जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जो व्यवस्था की है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज लोग आकर सेमिनार में बात करेंगे। अगर तिरुपति टेम्पल के प्रमुख वहाँ पर उनकी व्यवस्था सिक्योरिटी की कैसे उस बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लोग भी उसमें उस सेमिनार में भाग लेकर, मुंबई के सिद्धिविनायक हो या शिरडी हो, वो लोग भी उसमें सिक्योरिटी की उनकी व्यवस्था कैसी है और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, उसमें वो लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर कर अपने मंदिर को सिक्योरिटाइज कैसा किया जाए। आज के समाज में, आज के समय में हर मंदिर को कहीं ना कहीं से तो थ्रेट्स है, उस थ्रेट्स को लंबा कैसे किया जाए, ये सारी चीजें वहां पर सेमिनार में होगी। दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा फंड मैनेजमेंट का। तो फंड मैनेजमेंट के माध्यम से जैसे कि मंदिरों में बहुत सारे करोड़ों रुपए आते हैं, हमारी भावना के पैसे होते हैं। मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो इसे पूरे C2C मॉडल से हमें लोगों के सामने रखना है। तो C2C मॉडल क्या होगा, तो कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक कैसे पहुंचे। तो कॉमन मैन जो हम भक्ति भाव से कोई मंदिर में जाते हैं, गणपति बापा के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बुद्धिज्म के टेम्पल में जाते हैं या जैन टेम्पल में जाते हैं, स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं या महादेव का दर्शन लेने जाते हैं या लक्ष्मी माता का दर्शन लेने जाते हैं, हम हमारे पॉकेट से 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक, लोग करोड़ों रुपए तक भाव से उस दान पेटी में या रिसीट से डालते हैं। अब ये पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ थॉट्स हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में ट्रस्टी था, जैसे मेघा ने कहा कि उस समय 4 साल में हमने बहुत सारी सिस्टम सिद्धिविनायक टेम्पल में लगाई। जैसे कि 30% का फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगाया जाएगा और 70% का फंड लोगों के लिए C2C मॉडल से दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धिविनायक टेम्पल या शिरडी टेम्पल या तिरुपति टेम्पल ही वो करना चाहिए, तो 100% नहीं। फिर उसमें स्वामीनारायण टेम्पल हो, हरे राम हरे कृष्णा हो, बुद्धिज्म के टेम्पल हो, हमारे गुरुद्वाराज हो या हमारे मंदिर हो, इस सब माध्यम से जैसे उस समय पर हमने 70% पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, तो उसमें हमने मेडिकल स्कीम लाई। 25,000 रुपये आए हुए हर आदमी को 25,000 रुपये का चेक उसके हॉस्पिटल को मंदिर के माध्यम से दिया जाता है। शिरडी में भी वही व्यवस्था सिद्धिविनायक के बाद शुरू हुई, तिरुपति में भी वही व्यवस्था शुरू हुई, महाल अंबाबाई में भी शुरू हुई और कई टेम्पल उसको अभी करते हैं। लेकिन वहां पर कोई जात धर्म पंथ नहीं होता। उस मंदिर में आने वाला हर कोई, जिसे हम लोग नीडेड पीपल कह सकते हैं, जिसे जरूरत है, वो जरूरतमंद इंसान, वो कोई धर्म पंथ का जात का हो। एक एज एन एग्जाम्पल, मैं जब सिद्धिविनायक में था तो वहां पर मुस्लिम महिलाएं भी मदद मांगने आती थी। तो वहां पर आज भी बुर्खा पहन कर आई हुई मुस्लिम महिला हो या मुसलमान आदमी हो, वो अगर मदद मांगता है तो मंदिर ट्रस्ट से कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक जाने का जो प्रयास होता है, वो एक उत्तम उदाहरण इसमें है। दूसरा एक बुक बैंक का उदाहरण है। जैसे कि इस पैसे से अगर हम लोग अगर कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए मदद कर सकते हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान में हजारों मंदिर है, अगर हर बड़े मंदिर एक प्रयास कर कर एक प्लेटफॉर्म पर डिसीजन लेकर हर गांव में, हर राज्य के हर गांव में चलने वाले छोटे स्कूलों के लिए क्या हम बुक बैंक के माध्यम से मदद कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के माध्यम से उन्हें कोई व्यवस्था दे सकते हैं क्या? बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं क्या? बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं क्या? अगर ये कोई करता है, जैसे कि सिद्धिविनायक में जब हमने शुरुआत की थी तो 3000 बुक बैंक से शुरू हुआ था, जो बैंक बुक की, वो आज लाखों लोग महाराष्ट्र में उसको यूज कर रहे हैं। 11 लाख से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 11 लाख से भी ज्यादा लोग, बच्चे बुक बैंक के माध्यम से शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं।
रूरल एरियाज में स्कूल बनाना, बड़े छोटे स्कूल्स को मदद करना, उनकी छोटी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करना। और तीसरी और बहुत ही चौथी बड़ी बात, जैसे कि कहीं भी पूरे दुनिया में, देश में अगर डिजास्टर हो जाता है, जैसे कच्छ में भूकंप हुआ था, लातूर में भूकंप हुआ था 26/7 के टाइम, 26 जुलाई के टाइम, आपने भी मुंबई में देखा होगा, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय पे सिद्धिविनायक टेम्पल की तरफ से 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का निधि दिया गया था। तो क्या हम सब मंदिर अगर एक होकर ये एक प्लेटफॉर्म पे डिसीजन ले कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर समय आता है, तो क्या हम उसमें सब मंदिर मिलकर मदद कर सकते हैं क्या? सरकार का तो काम है, सरकार करती है और करती रहेगी, लेकिन एक हमारे भाव से, हमारा एक सर्वसामान्य हमारा भाई अगर कोई तकलीफ में आता है, भगवान करे कि वो ना हो, तो उस व्यवस्था में हम मंदिर की तरफ से कहीं मदद कर सकते हैं क्या? उसके बारे में भी बातचीत वहां पर होगी। सेकेंडली, फंड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें टैक्सेशन का बहुत बड़ा इशू आता है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्सेस को कैसे लगाया जाए, कौन सी चीज को जीएसटी लगाया जाए, कौन सी चीज को जीएसटी नहीं लगाया जाए, कौन सी चीजों को टैक्स कितना % हो। चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण चैरिटी कमिश्नर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। हर स्टेट में चैरिटी कमिश्नर के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग बातें होती है। क्या हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बात कर चैरिटेबल ट्रस्ट या टेम्पल या कोई भी धर्म के अगर मंदिर या समाज की चीजें हो, उसको हम किस तरीके से देख पाएंगे और किस तरीके से मदद कर पाएंगे, ये भी एक प्रयास होगा। दूसरा, इंटरनेशनल फंड जब मंदिरों को आता है तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल फंड वहां पर लेना चाहते हो तो उससे हमें कैसे, किस तरीके की मदद होगी, इस बारे में भी इसमें 100% सेमिनार में बात होगी। तीसरी और चौथी चीज होगी जिसमें सैनिटाइजेशन और हाइजीन की बात होगी। हम मंदिरों में जाते हैं, एक अच्छी भाव के साथ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति के साथ जाते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा कि कहीं भी टेम्पल हो, एक अच्छे से अच्छा वो सोई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन के माध्यम से, हाइजीन के माध्यम से हम वहां पर कोई अच्छी बात कर सकते हैं क्या? एक दूसरे के साथ एक दूसरे के थॉट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? ये भी बात वहां पर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2006-07 में जब सिद्धिविनायक टेम्पल को थ्रेट्स आए थे, तब लोगों को नारियल अंदर ले जाने के लिए बंदी कर दी थी। अब बहुत सारे मंदिरों में नारियल अंदर ले जाने नहीं देते, भगवान के फूल चढ़ाते, उसे हम निर्माल्य कलश में डालते हैं, नदी में बहाते हैं, पानी में बहाते हैं, समुद्र में डालते हैं, फिर हम लोग नेचर के साथ खेलते हैं, समुद्र को या नदी को खराब करने का काम करते हैं। क्या उस नार्मल्य को लेकर हम उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं क्या? ये एक प्रयास हमने किया था। और गणेश नार्मल्य के नाम से, गणेश फर्टिलाइजर के नाम से हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, जिसमें से लाखों रुपए का इनकम मंदिर ट्रस्ट को होने लगा। क्या ये सारे दुनिया के मंदिर अगर वो कर पाए तो हमें फर्टिलाइजर भी मिलेगा, हमारा नेचर भी कवर होगा, नेचर क्रिएट होगा, समुद्र में, नदी में जाने वाला कचरा बहने से रुक जाएगा। और माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रयास है, स्वच्छता का प्रयास है, उस स्वच्छता के प्रयास को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस माध्यम से कर पाएंगे। ये कोशिश और ये प्रयास होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नारियल हम रखते थे, नारियल को आधा तोड़ते थे, क्योंकि मंदिर में नारियल ले जाने के लिए सिक्योरिटी अलाउ नहीं करती थी, तो आधा नारियल भक्त लेके जाता था, बचे हुए आधे नारियल से हम लोग नारियल की वड़ी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में देते थे। आज उसमें से इनकम शुरू हो गई। हमने तिरुपति टेम्पल से बात की, वो लाडू बनाकर कैसे बनाते हैं, तो लाडू का इनकम चालू हो गया, लोगों को भक्ति भाव से प्रसाद मिलना शुरू हो गया। हमारी नारियल वड़ी देखकर शिरडी ने और कई अलग मंदिरों ने शुरू की। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ से अलग अलग लोग पूरी देश में, दुनिया से आकर एक दूसरे के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी और चौथी चीज है क्राउड मैनेजमेंट। जैसे कि अंगारिका चतुर्थी हो गई, गुरु पूर्णिमा हो गई, तिरुपति में, तिरुवरम में अलग कोई फेस्टिवल है, गुरु नानक जी का बर्थ एनिवर्सरी है, कई जगह पर क्राउड मैनेजमेंट का इशू होता है। मैं आपको एक महाराष्ट्र का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अब पिछले ही महीने में आषाढ़ी एकादशी हुई, लाखों लोग भक्ति भाव से आषाढ़ी में विठुराय का दर्शन लेने जाते हैं। विठु रुक्माई का दर्शन लेने के लिए 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर लोग चलकर पैदल आते हैं, और आने के साथ ही एक साथ 10-20 लाख लोग एक भीड़ में एक साथ में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम नहीं करती, 100% सरकार मदद करती है, लेकिन वहां पर भक्ति भाव से आया हुआ हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अपने भाव से वहां पर काम करता है कि मैं भगवान के दर्शन लेने आया हूं, मैं मेरे विठुराय के दर्शन लेने आया हूं, मुझे यहाँ पर सबको एक दूसरे को संभालना है।
तो वो मैनेजमेंट कैसी होती है, कौन से भाव से होती है,